Good morning, children. Today we are going to start a new lesson, and before that, can you observe some objects in front of me? Why I am putting in front of me this iron screw, this spoon, plate having some ashes, this plastic plate, scale, this bangle, chalk, and this plate, paper piece. Can you find any difference? If I touch this nail, it seems to be very hard. At the same time, if I touch this, it seems to be very soft, and as soon as I touch it, it just broke down into different pieces or in powder. So there are some differences among the object we differentiate. Okay, now have you ever wondered how objects or things are different from each other? Like if kite also fly up in the sky but not as high as an aeroplane. Okay, or as compare, kite is very light since it is made up of paper, but aeroplane it is made up of what? That's what I am talking about. Okay, so it's very heavier and fly up in the sky. So guess what? Yes, today we are going to start our lesson, that is metals and non-metals. So let's start. So have you ever wondered how objects or things are different from each other? Like some objects make sound, some don't. Some are very hard, some are not. Some are solid, some are not. Some are conduct electricity and heat, while some are not. So on the basis of these property, some materials are divided into two categories, that is the metals and non-metals. So let's start. Metals. Some general properties. Elements which are generally in solid state, hard, lustrous, heavier than water, malleable, ductile, tensile, have high melting point and boiling point, sonorous, and are good conductor of heat and electricity are called metals. Okay, एलिमेंट्स जो कि जनरली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस में शाइनी होते हैं, हेवियर देन वाटर पानी से हेवी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, दीज आई विल डिस्कस लेटर, डक्टाइल, टेंसाइल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनरस होते हैं मीन्स विच प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग हार्ड एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. How we are able to cook food in our utensil? Why? Just because they are made up of metals, and metals are the good conductor of heat and electricity. All these are called, if any object is made up of such kind of things and having all these properties, are known as metal. Okay, and opposite to them, जिसमें ये property नहीं होगी, all those are non-metals. Okay, generally they are brittle, not hard, non-lustrous, non-ductile, non-tensile, bad conductor of electricity, and non-sonorous means they don't produce sound, are called non-metals. Okay, now also understand about the atom and elements. What are atom? The simplest or the basic unit. Like अगर हम बात करें हमारे what is the basic unit of our body? It is the cell. Cell makes tissue, tissue make different organ, different organ make a system, and together they make a human body. अगर हम किसी घर की बात करें, so what is the basic unit? Basic unit is the brick. brick से एक दीवार बनी, फिर और बनी, ऐसे करके पूरा बिल्डिंग बनती है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ें किससे बनी हुई रहती है? दैट इज़ द एटम. ओके, सपोज आई एम हैविंग दिस पेज. इफ आई टीयर इट इनटू डिफरेंट पीसेस, ओके, इफ आई टीयर इट इनटू डिफरेंट pieces, number of pieces, see, as you can see this, I have torn all this page into number of pieces, but this single piece is made up of same kind of atom. means अगर हम ये सारे pieces को join कर दें तो क्या बनेगा? एक ये पेज बनेगा. ये पेज किससे बना हुआ है? इन छोटे छोटे टुकड़ों से. तो हम ये बोल सकते हैं इस पेज की बेसिक यूनिट क्या है? दिस स्मॉल और टाइनी पीस. सो एटम्स आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी. मीन्स अगर हम इसका रिएक्शन करवाते तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगा, बट किसी रिएक्शन में पार्ट करेगा. बच्चों, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट metals और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द एलिमेंट्स. अ सब्सटेंस
which cannot be broken into two or more different substance by chemical and physical means or electrolysis is called an element. Okay, like suppose अगर आपके पास डेयरी मिल्क है, इफ़ यू ब्रेक डेयरी मिल्क इनटू डिफरेंट पीसेस, तो वो डेयरी मिल्क के पीसेस में ही टूटेगी, ना ही वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट किसी और चॉकलेट में टूट जाएगी, मंच के टुकड़ों में टूटेगी क्या? नो, सेम इज़ द थिंग विद द एलिमेंट. जो एलिमेंट बना होता है वो सेम अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो डिफरेंट पीसेस में नहीं होगी, उसके लिए अलग प्रोसेस होती है, अलग चीज़ें होती हैं जिससे वो ब्रेक होगी, बट किस में होगी? सेम उसमें, ठीक है, सेम एटम्स में. ठीक, ओके. नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ओके, let's discuss about the physical properties. Physical property. Can you guess what are the different physical properties of any metals? First, conductivity. Conductivity का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंडक्ट करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना. जैसे हम खाना बनाते हैं, so क्या होता है उसमें? How the food cooks? गैस तो नीचे है, उसके ऊपर हमने अपना यूटेंसिल्स रखा, सपोज प्रेशर कुकर है. सो हाउ? बिकॉज सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ एन मेटल, इट कंडक्ट्स हीट और इट ट्रांसफर हीट. दैट्स हाउ फूड कुक्स. सो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच इज़ द कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. घरों में हमारे जो वायरिंग रहती है वो मेटल की ही है, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. नाउ कैन यू सी दिस वायर? ओके, एंड दिस वायर, इट इज़ अ रोल ऑफ कॉपर वायर. ठीक है, कैन यू नोटिस इट? यस, वेरी थिन, इट्स वेरी थिन. ओके, सो दीज आर द वायर अगेन मेड अप ऑफ वन ऑफ द मेटल. सो व्हाट इज़ द डक्टिलिटी? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती? प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उस मेटल को एक पतले वायर में उसको बना सकते हैं. जैसे कि ये आयरन का वायर है, ठीक है, जैसे ये एक वायर है, ठीक है, कितना है इसको, मतलब ये इस मेटल की प्रॉपर्टी थी कि इसको बहुत ही पतले वायर में कन्वर्ट कर दिया गया. ये कॉपर का है, मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि हम उसको बहुत ही थिन वायर में, ये आप देख सकते हैं कितना फाइन वायर है, कितना थिन वायर है. ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मीन्स प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. नाउ लस्टर. लस्टर मीन्स आपने देखा होगा मेटल बिल्कुल, अगर कोई नया हम यूटेंसिल लेके आते हैं, कोई बिल्कुल नई चीज़ रहती है, वो इट्स वेरी शाइनी होती है. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल. मेटल जो होते हैं उनका जो सरफेस रहता है वो शाइनी रहता है. समटाइम्स उसमें आप अपने फेस भी देख सकते हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर सरफेस हैज़ ए शाइन, मीन्स उनके सरफेस पे शाइन होती है. नाउ मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी मीन्स मेलिएबिलिटी. ओके, कैन यू नोटिस दिस? दिस इज ए एल्यूमिनियम फॉयल. ओके, अब एल्यूमिनियम तो आपने कई सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे. एल्यूमिनियम फ्रेम देखा होगा, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं और कई जगह विंडोज़ कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. सो नाउ व्हाट इज़ दैट thing which turns that heavy metal into this fine paper like sheet? It is one of the property of metal, means property by which metal can be beaten into thin sheet. Okay, metal की वो property जिससे उनको हम एक पतली fine sheet में convert कर सकते हैं. And one of the example is the aluminium foil, silver foil. और आपने देखा होगा या हम गोल्ड को देखें, 1 ग्राम गोल्ड से भी, मतलब अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो इतनी डक्टिलिटी होती है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है कि इससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है. पतली पतली थिन शीट्स में भी इसको कन्वर्ट, तभी तो इतने सारे आर्टिकल्स बन जाते हैं. ओके, दैट इज़ द मेलिएबिलिटी. नाउ सोनोरस. सोनोरस मीन्स, ओके, लेट्स डू वन एक्टिविटी.
since I am doing all this thing with my one hand I am holding phone, and with another hand I am doing all this thing, so please cooperate. See, can you heard it? Yes, very nice. Okay, now once again, it's another metal. You might have, what is the thing? Yes, so that is the sonorous. It is the property of metal by which metal produce ringing sound on being struck, और उनको जोर से हिट किया जाए, लाइक ओके, या हम किसी चीज़ को नीचे गिरा दें. हैव यू हर्ड द साउंड? यस, फाइन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज कॉल्ड एज सोनोरस. सोनोरस मेटल की वो प्रॉपर्टी, जब उनको ज़ोर से मारा जाए तब वो कैसा साउंड निकालते हैं? रिंगिंग साउंड निकालते हैं. ओके, अब आप डिफरेंट साउंड हो सकता है. जैसे मैं इस स्पून से हिट करूँगी तो अलग साउंड आएगा, इस आयरन स्क्रू से हिट करूँगी तो अलग साउंड आएगा. पर ये इस चॉक से साउंड आ सकता है? ओके, लेट्स डू इट. बहुत ही हल्का सा है, ठीक है. क्या इससे साउंड आ सकता है? वुड से? नो. क्या पेपर से साउंड आ सकता है? एंड दिस एशेस से? नो. सो देर इज a difference. Okay, now sonorous. Now we can differentiate. Now you understand? अब ये सारी प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी उनमें है क्या? ये हैव यू एवर हर्ड कि आपने कभी कोयले का वायर सुना हो, या आपने कभी ऑक्सीजन की शीट सुनी हो लाइक एल्यूमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल, या आपने कभी कार्बन की रिंग सुनी हो? नो ना. सो ऑल दीज थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट हैव सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, लस्टर, मेलिएबिलिटी एंड सोनोरस, है ना. आप देख सकते हैं, क्या इससे कोई साउंड आ सकता है? नो. कार्बन है अल्टीमेटली ये. ओके, इससे आ सकता है चॉक से? नो. ओके, पेपर से? नो. प्लास्टिक अगेन इट्स वेरी लिटिल, अगर उसको हार्ड थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो ये इट विल ब्रेक डाउन. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ यू अंडरस्टैंड. ये बेसिक नॉलेज थी अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल. टुडे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर मेटल्स and what are the physical properties of metals. In our next class we will discuss differences. So study well, prepare your notes. Okay, goodbye.